آج ویو 360 میں بھارت اور امریکہ جیسی بڑی معیشتیں کرونا وائرس کے آگے لرز رہی ہیں۔ پاکستان اور دیگر کئی ممالک میں ٹڈی دل کے حملے سے خوراک کے بحران کا خطرہ، اور ایسے میں جب دنیا بھر میں سکولز بند ہو رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہوم سکولنگ میں کیسے مدد کر سکتی ہے؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں اسد اللہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ کرونا وائرس کی وجہ سے معمولات زندگی پوری دنیا میں متاثر ہیں۔ ہم بھی اپنے اسٹوڈیو سے پروگرام نہیں کر پا رہے اور اسی لیے آؤٹ ڈور یہ پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ پاکستان اور خطے میں جس طرح سے امپیکٹ آیا ہے، خاص طور پہ افغانستان میں امریکی افواج کا انخلا جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا ہے۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کی رہائی کا عمل جلد شروع کرنے پر زور دیا ہے۔ خلیل زاد نے کہا کہ وعدے کے باوجود اب تک دونوں جانب سے کوئی قیدی رہا نہیں ہوئے ہیں۔ خلیل زاد نے اپنی کئی ٹویٹس میں کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے جو درپیش مہلک خطرات ہیں اس کا ذکر کیا اور کہا کہ قیدیوں کو اس حوالے سے جلد رہائی مل جانی چاہیے، اور قیدیوں کو خاص طور پہ اس وقت اگر رہا کیا جاتا ہے تو کرونا پینڈیمک سے انفیکٹ بچا بھی جا سکتا ہے۔ انہوں نے افغان صدر اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان صدارتی انتخابات کے نتائج کی وجہ سے جو سیاسی ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے اس کو بھی ختم کرنے پر زور دیا۔ پاکستان میں افغان مہاجرین پچھلے 40 سال سے رہ رہے ہیں، اور جس طرح کی سچویشن اب بن رہی ہے جس میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد افغانستان سے فوجیوں کی واپسی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان سے مہاجرین جو ہیں وہ بھی افغانستان واپس جا سکیں گے، لیکن ابھی بھی وہ ملٹیپل خدشات کا شکار ہیں۔ وہ خدشات ہیں کیا؟ پشاور سے عمر فاروق نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ محمد اللہ زدران نے کبھی اپنا آبائی وطن نہیں دیکھا۔ 40 سال قبل جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو لاکھوں افغانوں کی طرح محمد اللہ زدران کے والد بھی اپنا سب کو چھوڑ کر پاکستان چلے آئے اور پشاور میں نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا۔ آج زدران پشاور یونیورسٹی کے پیس اینڈ کنفلکٹ ڈپارٹمنٹ میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ اب جبکہ افغانستان میں امریکہ کی جنگ ختم ہو رہی ہے، محمد اللہ کو افغانستان میں جلد امن قائم ہونے کی توقع نہیں۔ ہم کشمکش میں ہیں کہ اگر وہاں پہ امن آتا ہے تو ہم جائیں گے، امن نہیں آئے گا تو ہم کیسے جائیں گے؟ نامنی سے اور جنگ سے تو ہم ویسے بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے مطابق پاکستان میں اس وقت 14 لاکھ رجسٹرڈ افغان مہاجرین موجود ہے جو اپنے ملک میں امن کی بحالی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کاندی صافی بھی پشاور میں گزشتہ 22 سال سے مقیم ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ماضی میں بھی افغانستان کے مختلف حلقوں کے درمیان معاہدے دیر پا ثابت نہیں ہوئے اور اسی لیے وہ اپنے آبائی وطن جانے کے لیے فی الحال تیار نہیں۔ ہم کشمکش میں ہیں، اگر وہاں پر امن آتا ہے تو ہم تب جائیں گے، بغیر امن کے ہم کیسے جائیں؟ ہم تو پہلے ہی بد امنی اور جنگ سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ محمد اللہ زدران کے بھائی پشاور میں کاسمیٹک کی دکان چلاتے ہیں۔ پاکستان میں پیدا ہونے والے بہت سے نوجوان افغان مہاجرین کی طرح انہیں بھی افغانستان میں ایک نئی زندگی شروع کرنا مشکل لگتا ہے۔ ان کے لیے پاکستان ہی ان کا گھر ہے۔ وہاں کے رسم و رواج اور یا پشاور کے رسم و رواج میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور ہم ادھر جا کے وہاں پھر سے سیٹل ہونے کے لیے ہم سے بہت ہی وقت لے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ ہمارا ادھر کوئی گھر بھی نہیں ہے، جو کچھ تھے وہ تو ویران ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین نے رضاکارانہ طور پر افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا پروگرام سردیاں ختم ہونے کے بعد شروع کر دیا ہے، لیکن افغانستان کی سیاسی جماعتوں کے اختلافات اور طالبان کے ساتھ افغان حکومت کے مذاکرات کے نتائج کے مستقبل کے متعلق غیر یقینی کے باعث بہت سے افغان مہاجرین فی الحال وطن واپس جانے کا فیصلہ نہیں کر رہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشتیں اس وقت مشکلات کا شکار ہیں۔ بھارت کی معیشت جو کہ پہلے سے ہی سست روی کا شکار تھی، کرونا وائرس کی وجہ سے خطرات اور بڑھ گئے ہیں کہ بھارت کی معیشت بہتر پرفارم نہیں کر پائے گی۔ بڑے کاروباروں سے لے کے چھوٹی بڑی دکانوں تک تجارت پر کرونا کے کافی منفی اثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔ دہاڑی دار مزدور ہوں یا اس کے علاوہ جو چھوٹے کاروباری مالکان ہیں وہ سب اس کا امپیکٹ فیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ریتل جوشی ہمیں دلی سے بتا رہی ہیں کہ کرونا بحران کے جاری رہنے کی صورت میں اکانومسٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ حالات کس حد تک بگڑ سکتے ہیں۔
ताज महल भारत के सबसे मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के दरवाजे गुज़िश्ता 4 दहाई में पहली बार सयाहों के लिए बंद किए गए हैं। ताजमहल के साथ मुल्क भर के कई और तारीखी मकामात भी कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 31 मार्च तक नहीं खुलेंगे। टूरिज्म का मतलब होटल से मतलब है, उसका मतलब रिटेल ट्रेड से मतलब है। जब टूरिस्ट आते हैं तो वो तरह तरह की चीज़ों पर खर्च करते हैं। उदाहरण के तौर पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिजनेस, क्योंकि इस समय ठप हो गई है, तो पूरा बिजनेस ट्रैवल, सो ट्रैवल इज़ अ ह्यूज सेक्टर। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट ये एक बड़ा सेक्टर है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। भारत में इस वक्त 15 अप्रैल तक कुछ खास कैटेगरीज छोड़कर सारे वीज़ास पर पाबंदी है। यूरोपियन यूनियन के साथ 5 और मुल्कों की फ़्लाइट्स पर पहले ही पाबंदी थी। अब 22 से 29 मार्च तक कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट भारत नहीं आ सकती। रेलवेज ने 168 ट्रेनें 31 मार्च तक कैंसिल कर दी हैं। कई स्टेट्स में स्कूल्स, कॉलेजेस बंद हैं और कुछ जगहों पर शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा हॉल्स भी बंद हैं। सड़कों और बाजारों पर कम होती भीड़ का असर हर तरह के बिजनेस पर दिख रहा है। बीमारी की वजह से हमारे सेल पर बहुत फर्क पड़ा है। हमारे पर नहीं, जितने बिजनेसमैन हैं सभी के ऊपर इतना फर्क पड़ा है। पब्लिक बाहर नहीं आ रहा तो दुकानदारी नहीं होता है। जब से कोरोना की सिस्टम चालू हुआ, जब से 50% कस्टमर कम है। जनवरी 2017 में भारत की जीडीपी 6.1% की रफ्तार से बढ़ रही थी। जनवरी 2020 में ये रफ्तार 4.7% पर आ गई। मुल्क में रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले से ही मंदी का शिकार हैं। कोरोना की वजह से सर्विस सेक्टर में होने वाली कमी से इकोनॉमी के और कमज़ोर होने का खतरा है। सर्विस सेक्टर इस समय 65% के आसपास भारतीय जीडीपी का है। सर्विस सेक्टर में जो इस समय जो कमी आ रही है, जो संकुचन हो रहा है, इसका असर रोजगार और आमदनियों पर पड़ेगा और उसका असर मांग पर पड़ेगा। हुकूमत के लिए इकोनॉमी की बिगड़ती सेहत तो परेशानी का सबब है ही, लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी इस वक्त आवाम की सेहत को ठीक रखने की है। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस की रफ्तार में चूँकि इजाफा हो रहा है, 10,000 से ज़ायद केसेस अब तक सामने आ चुके हैं और इसके साथ ही मरकज़ी हुकूमत के अलावा मुकामी हुकूमतें भी जो हैं वो भी काफ़ी सख्त इक़दाम करती नज़र आ रही हैं। रियासत न्यू जर्सी में हमारी साथी सबा शाह खान मौजूद हैं। वहाँ वो हमें उन इक़दाम के बारे में बता रही हैं जो कि न्यू जर्सी ने अब तक किए हैं ताकि रियासती हुकूमत कोरोना के फैलाव को रोक सके। इस वक्त तक न्यूयॉर्क से मुत्तसिल रियासत न्यू जर्सी में 743 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इससे पहले सिर्फ एक रोज़ में 89 केसेस के इजाफे के बाद यहाँ के गवर्नर ने शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक तमाम बिजनेसेस को बंद करने के हुक्म के साथ तजवीज़ दी थी कि शहरी शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक घरों से ना निकलें। इससे पहले ही तमाम शॉपिंग मॉल्स, अम्यूज़मेंट पार्क्स और डाइनिंग के लिए रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया था। रियासत में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल्स पहले ही बंद थे और अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल ये काफ़ी है। ये देखते हुए कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कौमी सतह पर मौसर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, तो मेरे ख्याल में रियासत के गवर्नर और लोग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की लाइल्मी और गफलत की वजह से रह जाने वाले खला को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे ट्रम्प इंतज़ामिया पर इस आलमी वबा के फैलाव को कंट्रोल करने में देर से इक़दामात पर तनकीद होती रही है, हुकूमत की जानिब से हाल ही में मईशत और आम अमरीकियों के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहा भी जा रहा है। मैं इस वक्त साउथ जर्सी के शहर चेरी हिल के राउट 38 पे खड़ी हूँ। इस शाहराह से रोज़ाना न्यू जर्सी से फिलाडेल्फिया आने और जाने वाली सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। ताहम इस वक्त यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक कितना कम है। अगरचे हुकाम की जानिब से लोगों को घरों से निकलने के लिए रोका नहीं गया, लेकिन गवर्नर की जानिब से पुरजोर दरख्वास्त की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। आम तौर से यहाँ गाड़ियों की कतारें लगी होती हैं और सिग्नल खड़े खड़े सबसे सुर्ख हो जाता है और आप सिग्नल नहीं क्रॉस कर पाते। सड़कों पर ट्रैफिक और बाज़ारों में लोगों की कमी से कहा जा सकता है कि लोग हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत को संजीदगी से ले रहे हैं। समाजी तौर पर फासला रखना, खुद को क्वारंटीन करना, बिला ज़रूरत बाहर ना जाना, बच्चों को घर के अंदर रखना और ज़्यादा लोगों से ना मिलना। लेकिन कुछ इसमें यकीन नहीं रखते। मुझे यकीन है कि खुदा की मर्जी है जो बेहतरीन वक्त पर होती है और मुझे लगता है कि हम सब कुछ ज़्यादा ही रद्द अमल दे रहे हैं। न्यू जर्सी के स्टोर्स में भी बाकी अमेरिका की मानंद ही बाज़ अशिया गायब हो चुकी हैं, लेकिन अब बहुत से स्टोर्स अपने स्टॉक्स को दोबारा पुर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम खरीदारों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक अश्तिया दस्तयाब हों।
اس کے لیے کئی سٹورز ایک کسٹمر کو ایک حد سے زائد اشیاء خریدنے کی اجازت نہیں دے رہے. یہ حد حکومت کی طرف سے نہیں بلکہ خود سٹورز کی جانب سے لگائی جا رہی ہے تاکہ ذخیرہ اندوزی کو روکا جا سکے. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، چیری ہل، نیو جرسی. جیسے جیسے امریکہ میں کرونا وائرس پھیلتا جا رہا ہے، بہت سے شہروں میں ریسٹورینٹس اور بارز کے اندر کھانا یا ڈرنکس دینے سے منع کر دیا گیا ہے. واشنگٹن کے علاقے میں ایک عالمی شہرت یافتہ شیف اور ریسٹورینٹ کے مالک اپنے صارفین اور کارکنوں کی دیکھ بھال کے لیے کون سے تخلیقی طریقے استعمال کر رہے ہیں، ہم وہ اس رپورٹ میں جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں بھی وہ کتنی مدد کر رہے ہیں. یہ سائنس فکشن فلم کی طرح لگتا ہے، لیکن 11 ستمبر بھی سائنس فکشن فلم کی طرح ہی لگتا تھا، لیکن ایسا ہوا. معروف شیف ہوزے آندرے ایک بڑے بحران کے لیے اپنے ریسٹورانٹس کو تیار کر رہے ہیں. ہمیں بدترین وقت کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے اور بہتر کی امید رکھنی چاہیے. ہوزے واشنگٹن ڈی سی کے علاقے اور نیو یارک میں اپنے بیشتر ریسٹورانٹس کو عارضی طور پر بند کر رہے ہیں تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے، اور وہ ریسٹورانٹس کو عوامی کچن کی طرز پر ڈھال رہے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ لوگوں کو کم قیمت پر کھانا میسر ہو، حتیٰ کہ ضرورت مندوں کے لیے مفت کھانا بھی. اگر ہم شہر میں 4 ریسٹورانٹس کے ساتھ دکھا سکیں کہ کس طرح نجی صنعتیں ہنگامی امداد کا حصہ بن سکتی ہیں، تو میرے خیال میں ہم بہت آسانی سے شہریوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. جو لوگ پیسہ ادا کرنے کے قابل ہیں وہ پیمنٹ کر دیں، جس سے کارکنان تھوڑی تنخواہ کے متحمل ہو سکتے ہیں. ہوزے اپنے ریسٹورانٹس کے باہر بیگز میں کھانا فراہم کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ اگر وائرس کی وجہ سے حالات زیادہ بگڑتے ہیں تو دوسرے ریسٹورانٹس ان کے ماڈل کو اپناتے ہوئے عوام کی مدد کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے ریسٹورانٹس کا ہونا اچھا ہے، جہاں لوگوں کو ایک پلیٹ خوراک تک رسائی ہو، جہاں بزرگ افراد کو جو کہ شاید مارکیٹ جا کر سودا خرید نہیں سکتے یا جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، کھانا مل سکے. اس طرح ہم ایک وقت میں ایک شہر کو کھانا کھلا سکتے ہیں. ہسپانوی نژاد امریکی شیف ایک غیر منافع بخش تنظیم ورلڈ سینٹرل کچن کے بانی بھی ہیں، جو قدرتی آفات کی صورت میں ضرورت مند افراد کو خوراک مہیا کرنے کے لیے کام کرتی ہے. ان کی طرح کچھ دوسرے ریسٹورانٹس بھی ان کے رہنما اصولوں کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. Sunday, you can ask any of my staff and managers, was a very tearful day for me as I tried to make the decision. اتوار کا دن میرے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ سٹاف میں کمی کی جائے یا نہیں، یا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی غرض سے تمام ریسٹورانٹس کو بند کر دیا جائے. اب ہم صرف ٹیک اوے کر رہے ہیں اور 15 ملازمین کو کام پر واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم خود کوئی نفع وصول نہیں کر رہے، بلکہ جو کچھ بھی کما رہے ہیں وہ اپنے ملازمین کو دے رہے ہیں. گارڈن اور ان کی ٹیم نے خود کو اس نئی صورتحال کے مطابق ڈھال لیا ہے. اگر ہم آنے والے حالات کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈالتے تو کچھ نہیں ہوگا. ورلڈ کچن نے ثابت کیا ہے کہ ہم طوفان، زلزلے اور سیاسی بحرانوں میں خود کو نئی صورتحال کے مطابق ڈھال کر لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. جولی تیبو کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ. ایسے میں جب دنیا کے کئی ممالک نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تعلیمی ادارے بند کر رکھے ہیں، والدین سٹرگل کر رہے ہیں اور وہ طریقے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے اپنے بچوں کو انگیج بھی رکھ سکیں، لیکن اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک ایسی رپورٹ دکھاتے ہیں، شاید وہ جدید ٹیکنالوجی جو اس رپورٹ میں دکھائی گئی ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے کہ کیسے بچوں کو تخلیقی سرگرمیوں میں مصروف رکھا جا سکتا ہے. ایسے والدین کم نہیں ہیں جنہیں اس بات پر تشویش ہے کہ ان کے بچے گھر میں رہتے ہوئے زیادہ وقت اسکرین کے سامنے گزارتے ہیں. اگر آپ اپنا وقت یوٹیوب، انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پر ضائع کرتے ہیں تو یہ اسکرین کے سامنے گزرا ہوا بدترین وقت ہے جسے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ٹیکنالوجی بہترین چیز ہے، یہ ہمارے ہر طرف موجود ہے اور اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن شاید بچے جس طرح سے اسے استعمال کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں. سافٹ ویئر انجینئر مارٹن ہوٹسمین نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے جس سے بچے ویڈیو گیمز کھیلنے اور دوسروں کے آئیڈیاز کو استعمال کرنے کی بجائے اپنی حقیقی زندگی کی مہارتوں اور ٹیکنالوجی کے اشتراک سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ ایک ایپ ہے جس کا نام ڈوڈل میٹک ہے.
पहले मखसूस रंग इस्तेमाल करते हुए एक खेल का खाका बनाएं। एक मुख्तलिफ रंग बताएगा कि कोई चीज़ किरदार है या हदफ या रुकावट। इस ऐप के ज़रिए अपने मोबाइल फ़ोन से इसकी तस्वीर उतारें तो ये एक वीडियो गेम बन जाएगा। हॉर्समैन का कहना है कि वीडियो गेम बनाने से हम जिंदगी गुजारने के अहम तरीके सीखते हैं। हमें इस बात पर पूरा यकीन है कि तख्लीकी सलाहियत और सोच किसी भी शोबे में ऐसी अहम महारत है जिसे बिलाखिर सीखना ही पड़ता है। बच्चे इस ऐप से मुफ्त में 2 एनिमेटेड गेम बना सकते हैं। इसके बाद $30 से भी कम में मजीद 1000 एनिमेटेड गेम्स तख्लीक किए जा सकते हैं। ऐसी ही एक दूसरी ऐप विविड बॉक्स है। इसके बानी डेविड डॉर्बिक हैं। अगर आप इन रवायती निसाबी किताबों पर नज़र डालें जो आजकल बच्चे इस्तेमाल करते हैं या जो 40 साल से इस्तेमाल की जा रही हैं, तो आप इनमें कुछ छोटी अशकाल देखेंगे जिनके साथ बहुत सा तहरीरी मवाद होता है। फिजिक्स में बहुत सी इतलात और नज़रियात होते हैं जिन्हें अशकाल की बजाय एनिमेशन की सूरत में देखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ में आते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से विविड बुक के सफ़ात को प्रिंट किया जा सकता है। जब आप मोबाइल डिवाइस को इस सफ़े पर रखेंगे तो इस ऐप की मदद से ये सब नज़र आएगा। आपकी डिवाइस सफ़े पर मौजूद तस्वीर को पहचान लेती है और इस तरह ये जान जाती है कि इसे एक ख़ास तरह की एनिमेशन को किस तरह दिखाना है। ये ऐप फ़िलहाल सिर्फ एप्पल की डिवाइसेस पर दस्तयाब है। तवक्को है कि इस साल जून तक ये वेब और एंड्रॉयड पर भी दस्तयाब होगी। कोरोना वायरस की वजह से जब तक बच्चे घरों पर हैं, वालिदैन निसाबी कुतुब के सफ़ात को मुफ्त हासिल कर सकते हैं। ये ऐप 10 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए है। कंपनी केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मवाद भी ऐप में शामिल करने का इरादा रखती है और मुस्तकबिल में इसका दायरा ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए बढ़ाने का मंसूबा है। एलिज़ाबेथ ली की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। जहां दुनिया कोरोना की वबा को फैलने से रोकने के लिए इकदाम कर रही है, एक नज़र डालते हैं उस बिज़नेस पर जो इस वायरस के फैलने की बुनियाद बना, यानी जंगली जानवरों का इंसानी खुराक के लिए इस्तेमाल का बिज़नेस। माहिरीन सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान की उस मार्केट में इंसानों में मुंतकिल हुआ जहाँ जंगली जानवरों की खरीदो फरोख्त का काम होता है। इस बहरान की वजह से चीनी हुकूमत को जंगली जानवरों की गैर कानूनी तिजारत और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाना पड़ी, लेकिन दीगर मुल्कों ने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया। जनूब मशरकी एशिया में सांप, चमगादड़ और दीगर जंगली जानवरों पर मुश्तमिल खाने न सिर्फ मारूफ हैं बल्कि प्रोटीन का बेहतरीन जरिया भी समझे जाते हैं। खास दावतों में जब सांप और चमगादड़ के गोश्त की डिशेस पेश की जाती हैं तो लोग शौक से खाते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन जब माहिरीन ने वुहान की एक जंगली हयात की मार्केट में जानवरों से इंसानों में कोरोना वायरस की मुमकिना मुंतकिली से दुनिया को आगाह किया, तब से जानवरों की तिजारत और इनका इस्तेमाल खतरनाक ख्याल किया जा रहा है। ख्याल है कि इस वबा के वायरस के फैलाव में सांप, चमगादड़ और पेंगोलिन ने किरदार अदा किया है। चीनी हुकूमत ने पूरे मुल्क में जानवरों की गैर कानूनी शिकार और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। मेरे ख्याल में अब चीनी हुकूमत पर यह वाज़ेह हो गया है कि ये सब चीन में जानवरों से मुताल्लिक कमज़ोर ज़ाब्तों और पॉलिसियों की वजह से हुआ है। क्रॉफर्ड एलन वाशिंगटन में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के साथ वाबस्ता है। मेरे ख्याल में इस सूरत हाल से निपटने के लिए अब आपको फूड बिजनेस में ज़्यादा सख्त ज़ाब्ते और पाबंदियाँ नजर आएंगी। क्रॉफर्ड एलन इस वायरस से निपटने के लिए दुनिया भर में जानवरों पर मुश्तमिल गैर कानूनी मार्केट्स पर पाबंदी के हक में हैं। वुहान की तरह की मार्केट्स इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस और म्यांमार में भी मौजूद हैं जो कि खतरे का बायस हो सकती हैं। लेकिन इन मुल्कों ने पाबंदी आयद करने में तेजी नहीं दिखाई। इंडोनेशिया में सांप और चमगादड़ों की फरोख्त में 50% कमी के बावजूद इनकी पसंदीदगी में कोई फर्क नहीं आया। लोग सांप और चमगादड़ों से बनी खुराक से खौफजदा नहीं हैं क्योंकि ये बरसों से हमारे रवायती खानों का हिस्सा हैं। अगर हम जानवरों की मार्केट से मुतालिक सख्त कवानीन बनाते हैं तो इससे जंगली हयात की बका में मदद मिलेगी। मुतवक्के तौर पर जब लोग इन जानवरों से बनी डिशेस ऑर्डर नहीं करेंगे तो फिर इनकी गैर कानूनी तिजारत में भी कमी आएगी। क्रॉफर्ड को उम्मीद है कि कोरोना वायरस से लोग सबक सीखेंगे।
मैं समझता हूँ कि अगर लोग इसे संजीदगी से नहीं लेंगे तो आने वाले वक्त में और कई वायरसेस सामने आ सकते हैं। वो कहते हैं कि जंगली हयात की हिफाजत इंसानी सेहत के लिए ही ज़रूरी नहीं बल्कि खुद इस कुराए अर्ज के माहौल की हिफाजत के लिए भी अहम है। जूली टैबो के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। पाकिस्तान की मईशत को कोरोना वायरस से जो इस वक्त ख़तरा है, इससे पहले पाकिस्तान की मईशत एक और बड़ा ख़तरा फेस कर चुकी है, जो था टिड्डी दल का फसलों पे हमला। माहिरीन ज़राअत के मुताबिक ये पाकिस्तान में टिड्डियों का 1993 के बाद सबसे बड़ा हमला है। कहा जा रहा है कि इससे होने वाली ज़राई नुकसान के बायस पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार 2% से भी कम हो सकती है। उधर टिड्डियों के बड़े हमले के सबब मशरक़ी अफ्रीका में ख़तरा पैदा हो गया है कि लाखों अफराद भूख और कहत का शिकार हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए खुराक और ज़राअत ने इस सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया है, मगर अब वहाँ पे जो जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है मशरक़ी अफ्रीका में, उसके बाद कहा जा रहा है कि टिड्डी के रास्ते और अगले महाज की पेशगोई की जा सकती है। इस वबा से निमटने का हल कैसे निकाला जा सकता है? कीनिया में एक सर्वर रूम रखा गया है जिसमें यह बताया गया है कि ये किस तरह से आने वाले रूट की निशानदेही कर सकता है। दुनिया इससे क्या सीख सकती है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कीनिया और मशरक़ी अफ्रीका के कुछ दूसरे इलाकों में टिड्डियों के हमलों ने वहां पर लाखों अफराद की खुराक को खतरे में डाल दिया है, मगर दारुल हुकूमत नैरोबी में एक सर्वर रूम में इसका हल मौजूद है। इस सुपर कंप्यूटर के इस्तेमाल से हम मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ दौरानियों जैसे 1 माह या 1 हफ्ते के लिए पेशगोई कर सकते हैं, और हाल ही में हमने इससे सहरा में टिड्डी की नकलो हरकत पर नज़र रखनी शुरू की है। अबू बकर साले कीनिया के सरकारी महकमों के लिए माहौलियात के साइंसदान हैं। वो और दूसरे रिसर्चर्स सुपर कंप्यूटर को टिड्डी की नकलो हरकत की पेशगोई के लिए इस्तेमाल करते हैं। टिड्डी मौसमी हालात के हिसाब से नकलो हरकत करती है, तो हम हवा की रफ्तार, सिमत, दर्जा हरारत और हवा में नमी के बारे में पेशगोई करते हैं, जैसे हवा में कितनी नमी है और ज़मीन कितनी गीली है। अबू बकर कहते हैं कि सैटेलाइट से लिया हुआ डाटा और जोग्राफियाई मालूमात को इस्तेमाल करते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 10 रोज़ में टिड्डी दल किस तरफ जाएगा, जिससे इससे निमटने वाली गैर सरकारी तंजीमों को मदद मिल सकेगी। इस तरह वो वसाइल को बेहतर तौर से मख्तस कर सकते हैं और सहरा में टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए इक्तसादी वसाइल का तखमीना लगा सकते हैं। ये एक हकीकी मसले जैसे सहरा में टिड्डी की वबा से निमटने के लिए टेक्नोलॉजी का नए तरीके से इस्तेमाल करना है। माहिरीन इस बात से इत्तफाक करते हैं कि कंप्यूटर मॉडल से मदद तो मिलती है, मगर इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। After 10 days we'll hear 10 रोज बाद शायद हमें पता चलता था कि किसी ऐसे इलाके में हमला हुआ है जिसकी पेशगोई हम नहीं कर पाए थे या वो हमारे अंदाजों से बाहर थी। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं कि मुख्तलिफ मॉडल टेस्ट कर रहे हैं ताकि हम इन्हें बेहतर बना सकें। माहिरीन टिड्डी के मौजूदा मसले को 70 बरस में सबसे बदतरीन करार दे रहे हैं। टिड्डी दल एक रोज में 161 किलोमीटर सफर कर सकते हैं और 35,000 अफराद के लिए काफी खुराक खा जाते हैं। अर्श अरब आसादी के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। स्टे सेफ और हमें भी बताइएगा कि आप कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं जिससे आप कोरोना वायरस से बच सकें, और शेयर कीजिए हमसे facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।